So hello students, how are you? Fine. So now today we want to discuss multiple choice questions of electromagnetic induction. This is the last video of electromagnetic induction. So please you do one thing. First you go to the description, have the question paper, try to solve by yourself and see the answer sheet also in the description, and after that you view this video to understand all the concepts so that you can see that which points were right and where were you wrong. Now here the question number 1 is, which one of the following can produce maximum induced EMF? The choices are 50 ampere DC, 50 ampere DC, 50 ampere, 50 hertz AC, then 50 ampere, 500 hertz AC, and then 100 ampere DC. So actually you know one thing, that there will be no induced EMF in case of DC. तो ये तो पहले ही आपके कट गए. अब इन दोनों में से करंट की वैल्यू सेम है, तो किस में इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी? जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी. बिकॉज यू नो व्हाट इज E इज BA ओमेगा. तो जिसमें ओमेगा ज़्यादा है, तो इसलिए आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या बनेगा? C. Now the second problem is, a 100 ohm resistance coil has 100 turns. It's placed in a magnetic field of magnetic induction 5 into 10 to the power minus 4 Tesla in 0.1 second. If the area of a cross section is 1 square meter, then induced EMF is. Choices are 5 volts, 0.5 volt, 0.05 volt and 0.005 volt. अब गिवन देखिए पहले. नंबर ऑफ टर्न्स 100, magnetic field of strength 5 into 10 to the power minus 4 Tesla, area of cross section is 1 square meter. ठीक है, तो सबसे पहले ये है और उसके बाद ये दिया है. तो अब पहले तो हम ये देख ले कि इसमें फाई कितनी फ्लक्स इसके हिसाब से होगी. NBA it will be 100 into 5 into 10 to the power minus 4 into 1. That means it is 5 into 10 to the power minus 2 Weber. अब क्या कहा है कि इसको उस देखो क्या कहा है कि 100 ohm resistance has 100 turns. It is placed in a magnetic field in 0.1 second. So that means कितना टाइम लगा उसको रखने में? 0.1 second. That means initial flux क्या थी? 0. फाइनल फ्लक्स कितनी हो गई? 5 into 10 to the power minus 2 Weber. कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में. तो EMF क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम. तो इट विल बी 5 into 10 to the power minus 2 upon 0.1. So that is 5 into 10 to the power minus 2. 0.1 means 1 by 10. ठीक है, so it is 5 into 10 to the power minus 1, that is 0.5 volt. So here B will be your answer. तो इस तरीके से आपने इसमें बेटे देखना है कि क्या आंसर बनेगा. देखो इसमें उसने कहा कि इतना टाइम लगा उसको रखने के लिए. सो नेचुरली इसका मतलब कि इनिशियली फ्लक्स 0 होगी और फाइनल जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो कितनी फ्लक्स चेंज कितने टाइम में हुई? जो टाइम उसको मूव करने के लिए लगा. Now question number 3 is, two concentric loops lie in same plane. Current in outer loop is clockwise and increases with the time. The induced current in the inner loop is. किस
तरह होगा, दो concentric loops हैं. Concentric loops means with the same center, so it's like this. अब क्या दिया है कि current in outer loop is clockwise, it's like this. ठीक हो गया. उसके बाद ये कहा कि दिस करंट इंक्रीजेस विद टाइम. तो जब टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इनर लूप विल इंक्रीज विद टाइम. जब करंट बढ़ेगा तो बेटे फ्लक्स बढ़ेगी. अब अकॉर्डिंग टू लेम्स लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एक्टिंग इन ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज. कॉज क्या है? इंक्रीज. उस इंक्रीज को क्या करना है? अपोज. So that means current will flow in the opposite direction. जिस डायरेक्शन में आउटर लूप में से जा रहा है, इनर लूप में उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. Only then it will oppose the flux. So that means what will be your answer? That the current in the inner loop will be in anti-clockwise direction. Now the fourth question is, a galvanometer is connected to secondary coil. The galvanometer shows an instantaneous deflection of 7 divisions when current is started in the primary coil of solenoid. मतलब कि ये देखो, प्राइमरी कॉइल है सोलिनॉइड की. जब इसमें से करंट का फ्लो शुरू हुआ तो जो सेकेंडरी कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच की है, that gives the deflection of 7 divisions. If the primary coil is suddenly rotated through 180 degree, the new instantaneous deflection will be, and the choices are 7 units, 0 units, 14 units, 21 units and 14 units. ये 4 choices. अब इसमें क्या आएगा? देखो, जब प्राइमरी में से करंट का फ्लो चेंज हो रहा है, पहले देखो करंट जो है 0 से I एम्पियर होगा. प्राइमरी के अंदर करंट जो है कैसे चेंज हो रहा है? 0 to I एम्पियर. उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, है ना. तो आपके पास आ जाता है E is equal to m into di by dt. ठीक है ना. उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इंड्यूस्ड करंट आ गया. अब जब इसको 180 से रोटेट कर दिया, दैट मीन्स नाउ करंट इज चेंजिंग फ्रॉम I to minus I एम्पियर. तो बेटा इसमें di कितना था? इसमें di I था. यहाँ di अब क्या हो गया? 2I हो गया. तो दैट मीन्स चेंज इन करंट इज डबल. तो फिर induced EMF will be double, induced current will also be double, so deflection will increase twice, so it will be 14 units. क्लियर हुई बात? कि पहले जो है, देखो बड़ी क्लियर कहा था कि galvanometer is connected to secondary. Galvanometer shows instantaneous deflection of 7 division when current is started in the primary coil. That means current is changing from 0 to some value I. उसके बाद क्या कहा? If primary coil is suddenly rotated through 180, मतलब टाइम नहीं लगा. तो जब 180 से रोटेट कर दिया, that means now current is changing from I to minus I. तो that means जो चेंज इन करंट है वो डबल हो गया. तो इसलिए आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डबल हो जाएगी और इंड्यूस्ड करंट डबल हो गया. और जो डिफ्लेक्शन है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. तो अगर करंट डबल है तो डिफ्लेक्शन भी डबल होगी. तो योर आंसर विल बी 14 डिवीजन, दैट इज डी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5. A horizontal telegraph wire 0.5 kilometer long running east to west has resistance of 2.5 ohm. So this is the wire, this is east, this is west, and this length is given to be 0.5 meter और इसकी resistance है 2.5 ohm. The wire falls to the ground
फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट से ये वायर फॉल करेगी ग्राउंड के ऊपर अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये मूव कर रही है किसके इफेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, which is 2 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेरी इंटेंसिटी। तो हमने बताना है इंड्यूस्ड करंट सर्किट के अंदर कितना होगा। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब ये हम इस वायर को ये फॉल कर रही है तो हाउ मच वेलोसिटी विल बी अटेन्ड बाय इट। सिंपल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा आपके पास, v² - 0 इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि इनिशियली क्या है, 0 है। तो दैट मीन्स व्हाट इज v, v विल बी इक्वल टू 2gh अंडर द रूट। और टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, टाइम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। तो बेटा t किसके बराबर आ जाएगा, 2h/g अंडर द रूट। अब 2h हाइट कितनी है 5, g को 10 ले लो, तो ये तुम्हारे पास बेटा टाइम आ गया 1 सेकेंड। सो दैट मीन्स इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतना टाइम लगेगा। मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, मैंने ये देख लेना है कि फ्लक्स के चेंज क्या आएगा। फ्लक्स का चेंज क्या होना है बेटा, हाँ, अब इसमें फ्लक्स का चेंज देखना है तो वो आपके पास नेचुरली फाई क्या है, b इंटू ए, ठीक है, और b कितना है 2 इंटू 10⁻⁵, और a कैसे निकालोगे, 2 इंटू 10⁻⁵, और बेटा a आपके पास एरिया, तो एरिया कितना बनना है कि आपके पास ये 0.5 मीटर नहीं है, 0.5 किलोमीटर है। तो दैट मीन्स एरिया इज दिस इंटू दिस, तो लेंथ इज 0.5 इंटू 10⁻³ और हाइट आ गया आपके पास 5। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 10⁻⁵, 5/10, 10⁻³ इंटू 5। तो ये तुम्हारे पास 2 इंटू 5 10 कैंसिल ही हो गया, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻² वेबर। सो दैट मीन्स कि जब ये यहाँ से यहाँ फॉल कर रहा है तो जो फ्लक्स में चेंज आ रही है कितनी आ रही है, 5 इंटू 10⁻⁻² वेबर, और कितने टाइम में चेंज आई, 1 सेकेंड में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी बन गई, 5 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। तो अब आई करंट कितना बनेगा, E/R। तो E इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 5 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट, और इसकी रेजिस्टेंस दी है 2.5, तो नेचुरली करंट विल बी 2 इंटू 10⁻² एम्पियर, यानी कि 0.02 एम्पियर। तो ये सी आपका आंसर बनेगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया है, हमने कहा कि जब ये वायर यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ के 0 होगी, है ना। तो इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स इज b इंटू ए, बी स्ट्रेंथ है फील्ड की, एरिया आपने ये टोटल ले लिया, दिस लेंथ इंटू दिस हाइट, तो वहाँ से आपके पास फ्लक्स चेंज आ गया। अब हमने देखा वायर को फॉल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, उतने टाइम में फ्लक्स चेंज होनी है, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर ली, वहाँ से इंड्यूस करंट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग 200 turns per centimeter carries a current of 1.5 ampere. At the center of it is placed a coil of 100 turns of cross-sectional area having its axis parallel to the field produced by the solenoid. तो इसमें क्या दिया है बेटा, सबसे पहले अब ध्यान से इसमें साथ साथ में देखते जाइए कि इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्योंकि बजाय कि हम पूरा पहले रीड आउट करें फिर हम उस पर चले, तो हम साथ साथ में ही देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये दिया है ए लॉन्ग सोलिनॉइड
having 200 turns per centimeter carries a current of this. That means it is this solenoid like this. ठीक है ना? इसमें I current 1.5 एम्पियर है and number of turns per centimeter 200 turns per सेंटीमीटर है. ठीक है. अब इसके बाद दिया है at the center of it is a placed a coil of 100 turns of cross sectional area 3.14 into 10 is per minus 4 meter square having its axis parallel to the field produced by the solenoid. पहले देखो field produced by the solenoid B इस सारे के अंदर कांस्टेंट होगा. इट इज म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट की वैल्यू बेटे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है. लेकिन अब n नंबर ऑफ टर्म्स को पर मीटर लोगे तो अगर बेटे ये पर सेंटीमीटर 200 है तो पर मीटर कितनी बन जाएंगी. आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना. देखो 200 पर सेंटीमीटर को आपने मीटर किया 10⁻². या आप ऐसे ले लो कि 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न 200 है तो 1 मीटर में यानी कि 100 सेंटीमीटर में कितनी होंगी. तो 10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू आई दैट इज 1.5. तो इतने वेबर आपके पास बी फील्ड की वैल्यू जो है इसमें वो आ गई. और इस वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाती है 3.8 इंटू 10⁻⁻² वेबर. अब इसके अंदर जो कॉइल रखी गई है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3.14 इंटू 10⁻⁴ और उसकी एक्सिस ले ली तो दैट मीन्स उसमें एंगल 0 डिग्री बन रहा उसने कहा है. तो बी फील्ड इज 3.8 इंटू 10⁻². एरिया इज गिवन टू बी 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴, नॉट 7, -4. ठीक है. तो ये आपके पास बन गया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर. अब प्रॉब्लम में देखो ये कहा है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू सोलिनॉइड इज रिवर्स्ड विद इन 0.05 सेकेंड. अब अगर मैं इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इंटरचेंज कर दूंगी तो नेचुरली बेटे फ्लक्स जो है माइनस आ जाएगी. ठीक हो गया. तो चेंज इन फ्लक्स कितनी बन गई. दिस माइनस ऑफ दिस दैट मीन्स 2.4 इंटू 10⁻⁵ वेबर. और कितनी देर में हमने डायरेक्शन चेंज की थी. दैट वाज विद इन 0.05 सेकेंड. तो इसलिए आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.05. So this comes out to be 0.048 वोल्ट. आंसर जो है हमारा बनेगा. तो इसमें फिर एक बार प्रॉब्लम देख सकते हो. ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. At the center of it is a placed a coil of 100 turns of cross-sectional area 3.14 into 10⁻⁴ meter, having its axis parallel to the field produced by solenoid. When the direction of current is reversed in 0.05 second, induced EMF coil में कितना होगा. तो ये आपने इसमें देखना था. Now question number 7. इसमें डबल चीज लगा दी कि फील्ड प्रोड्यूस सोलिनॉइड के अंदर हो गया. जो कॉइल को आपने उसके अंदर रख लिया NBA तो उस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाएंगी. तो आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है वो लेना है. अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स has a mutual inductance of 1.5 Henry. 1.5 Henry
if current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, then change in magnetic flux will be, तो change in magnetic flux, तो d phi that is m into di. क्या बनेगा? m into di. m कितना है? 1.5. di is 20, तो it will be 15 by 10 into 20, तो it will be 30 Weber. तो 30 Weber आपका इसमें आंसर बनेगा, विच विल बी बी. इसमें टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बेटा आपको पूछा ही ये गया है कि चेंज फ्लक्स में कितना आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए इंडक्शन फर्नेस, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, सी स्पीडोमीटर, डी ऑल ऑफ दीज. तो इसमें आंसर क्या बनेगा? डी, क्योंकि इंडक्शन फर्नेस ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक ले लो, स्पीडोमीटर ले लो, हर एक में एडी करंट आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Lenz's law is a consequence of law of conservation of A. charge, B. mass, C. momentum, D. energy. तो Lenz's law क्या है? Law of conservation of energy. So D will be your answer. Now question number 10. Magnetic flux linked with the circuit phi is given by TQ plus 3t minus 7. Graph between time and induced EMF. पहले देखिए क्या होगा. E will be minus d phi by dt. तो बेटा जब आप d phi by dt लोगे, you will differentiate. तो t क्यूब की डिफ्रेंसिएशन आ गई 3t स्क्वायर प्लस 3t की 3, 7 की 0. तो दैट मीन्स कि E आपके पास ये बन गया, जो मैग्नीट्यूड जब आपने लेनी है उसमें माइनस का साइन नहीं आएगा. नाउ यू सी व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन दिस E इज इक्वल टू 3. और दूसरी तरफ देखो तो E इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. तो व्हेन यू विल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन E एंड t, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है t और E में, तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा? E इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो ग्राफ विल बी ए पैराबोला. लेकिन क्या वो पैराबोला ओरिजिन से पास होगा? नहीं, बिकॉज व्हेन t इज 0 देन E इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स यू आर गेटिंग इट लाइक दिस. ठीक है, तो इसमें यही था कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट इज गिवन बाय phi is TQ plus 3t minus 7. Graph between time and induced EMF will be A. straight line through origin, B. straight line with negative intercept, C. straight line passing through origin, D. parabola not through origin. तो इसमें D आंसर बनेगा. Now question number 11. A coil having 500 turns of square shape, each of side 10 centimeter, is placed normal to a magnetic field which is increasing at 1 Tesla per second. Induced EMF is. तो ये कैसे निकालोगे इसमें induced EMF? देखें क्या दिया है आपको. What is given in this problem? Let's see. This is your question number 11. A coil having 500 turns, square shape, तो हर एक साइड है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर शेप में बेटा एरिया हो गया 0.10 इंटू 0.10, 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर. And this is placed to magnetic field which is increasing at 1 Tesla per second. That means dV by dt is 1 Tesla per second. तो हमें क्या बताना है? What will be induced EMF? तो बेटा E क्या होता है? d phi by dt. नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वो तो डायरेक्शन के लिए हमने लेना है.
Now it is d by dt of n ba. So it is n a, number of terms area कांस्टेंट है, into dv by dt. इसमें जो फ्लक्स चेंज है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है. Now n is 500, area is 0.01 means 1 by 100 into dv by dt, that is 1. तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बन गई 5 वोल्ट. तो दिस इज योर सी आंसर. कौन सा आंसर आ गया? सी. अब क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ वायर हैज 3.5 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम. एक लूप है, आपको उस लूप का एरिया बता दिया 3.5 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर. उसके साथ साथ दिया है कि इस लूप की रेजिस्टेंस है 10 ओम. उसके बाद क्या है कि इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस 0.4 साइन ऑफ 50 पाई टी. नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू लूप, क्या निकालना है? नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू लूप ड्यूरिंग टाइम 0 सेकेंड to 10 मिली सेकेंड इज. चार्ज कितना फ्लो करेगा इसके दौरान? द चॉइसेस आर 0.04, 0.14, 0.217 मिली क्यूलम. तो इसमें आप किस तरीके से देखोगे बेटा? अगेन अगर आप देखो तो इसमें हम सीधा फॉर्मूला चार्ज के लिए याद है हमने क्या किया था? डेल्टा क्यू इज डेल्टा फाई बाई आर. So if we know flux change and we simply divide it by resistance, then we get the value of charge. अब हम flux change कैसे लेंगे? Flux change में सीधा कहा कि magnetic field change होगा, है ना? तो जब magnetic field change होना है तो that means अब कितना, कब, कैसे, ये वाली बात आ गई. अब आप ऐसे करो, इसमें यूं आपके पास हो रहा है, ठीक है? अब आपको इधर टाइम दिया है. अब मेरे को पता है इसमें क्या देखना है कि इस टाइम के अकॉर्डिंगली फील्ड की वैल्यू क्या है. क्योंकि बेटा बड़ी सीधी सी बात है, डेल्टा फाई तो φ2 - φ1 आना है, और φ2 - φ1 क्या होना है? b2 - b1 into a. तो मेरे को ये चाहिए कि 0 सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 10 मिली सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है. तो मेरा काम हो जाना है. अब उसके लिए तुम ये देखो, आप इसको कंपेयर करो B is equal to B0 साइन ऑफ ओमेगा टी से. तो ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 50 पाई. ठीक हो गया? अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, दैट इज 50 पाई. पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू क्या बन गई? 2/50, 2/50 सेकेंड. अब अगर मैं इसको मिली सेकेंड में ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन गए बेटे? 2000/50. मिली सेकेंड करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम्हारे पास 40 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड बना. दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम है ना, वो कितना है? 40 मिली सेकेंड का. दैट मीन्स यहाँ तक 20, तो दैट मीन्स यहाँ पर 10 मिली सेकेंड. तो यानी कि 10 मिली सेकेंड का मतलब हो गया t/4. सो दैट मीन्स अब हम क्या लेंगे कि when t is 0 तो b will be 0, है ना? एंड when t is 10 मिली सेकेंड तो b क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 0.4. तो अब आप इसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये बन गया 0.4 इंटू एरिया, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास डेल्टा फाई आ गया. और अब आप इसको, ये तुम्हारे पास बन गया 0.14 इंटू 10⁻³
वेबर, और R से अब आप इसको डिवाइड कर दोगे 0.14 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.14 इंटू 10⁻², है सॉरी, यहाँ पर -2 वेबर है, तो ये आपके पास 0.4 इंटू 1 10⁻⁻1 यानी कि 14.14 मिली क्यूलम जो आपके पास इसका आंसर होगा। तो यानी कि आपने सिंपल जो है इसको इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। ये 0.4 इंटू 10⁻² है, ये भी ऊपर जाके -3 हो गया, तो ये 0.14 मिली क्यूलम आपके पास इसका आंसर आ गया। अब 13th क्वेश्चन देखिए, करंट आई इज 10 साइन ऑफ 100πt। अब देखा ना इसमें ये इंटरेस्टिंग बात कि अदरवाइज हमें लगता है कि इसमें कैसे करते, हमने सिंपल लिया कि भाई अगर हमने चार्ज लेना है तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो B इंटू ए है। अब B का वेरिएशन कैसे लें, तो उसके लिए उसने टाइम बताया है। तो हम ये देखें कि जब ये सिनुसॉइडल वेरिएशन है तो उन दो टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे वेरी कर रही है। तो हमने पहले टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड से हमने देखा कि ये टाइम क्या बन रहा है, ये वेरिएशन क्या बन रही, 0 to T/4, तो दैट मीन्स 0 to maximum value of magnetic field. Now question number 13 is current I is equal to 10 sine of 100πt. This is passed in first coil which induces a maximum EMF of 5 pi volt in the second coil. मतलब ये coil है, इसमें से इतना करंट पास हो रहा है, तो इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें EMF की वैल्यू बताने की कितना होगा। अब बड़ी सीधी सी बात है, E will be m into di/dt। तो यहाँ से बेटा हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके di/dt ले लें, तो 10 साइन ऑफ दिस, साइन का आ जाएगा cos 100πt into d/dt of 100πt will be 100π. So that means this di/dt will be 1000π cos of 100πt। ठीक हो गया। तो अब आप जब यहाँ से लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, ई मैक्सिमम विल बी m इंटू di/dt मैक्सिमम। तो di/dt की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1000π, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। और अब इसमें कहा गया है कि कितनी मैक्सिमम EMF है, 5π, तो 5π इज m इंटू 1000π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो m इज 5/1000, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, और यू कैन से 5 मिली हेनरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF in a coil is 25 volt. When current rate is changed at uniform rate from 10 ampere to 25 ampere in 1 second, the change in energy. तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 25 वोल्ट, ना सॉरी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू दी है 25 volt. So self-induced EMF of coil is 25 volt. कब? When current changes from 10 ampere to 25 ampere in 1 second. तो बेटा नेचुरली यहाँ से di/dt क्या बन गया, चेंज इन करंट 15 टाइम 1, तो it is 15 ampere per second. Now E is L into di/dt,
तो L किसके बराबर आ गया, E अपॉन di/dt, तो इट विल बी 25/15, दैट इज 5/3 हेनरी। तो सबसे पहले इसमें हमने L की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन उसके बाद पूछा क्या है कि व्हाट विल बी चेंज इन एनर्जी डेल्टा E। तो बेटा एनर्जी स्टोर इज हाफ ऑफ Li², तो जब I2 करंट है एनर्जी विल बी हाफ Li2², जब I1 करंट है तो हाफ ऑफ I1², हाफ L 5/3 कॉमन ले लो, तो अब अंदर है I2 का स्क्वायर 625 माइनस I1 का स्क्वायर दैट इज 100, तो ये बन गया 1/2 इंटू 5/3 इंटू 525, and when you solve it then this comes out to be equal to 437.5 joule. So A will be answer in this case. And now the last question is, a wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF is, क्या कहा है कि एक वायर लूप रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज A 6 times per revolution, B once per revolution, C twice per revolution, D 4 times per revolution। तो बेटा आपको याद है E का फॉर्मूला क्या होता है इसमें जब रोटेशन होती है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और किस तरीके से इसमें आता है, यूं आता है, तो इसका मतलब कितनी बार चेंज आ रही है, 2 times, तो इसलिए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, C, तो C विल बी योर आंसर। तो बेटा ये मैंने अटेम्प्ट किया है, कोशिश की आपको बताने की, और आपने इसमें भी देखा कि मैंने कोई नया फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही हमारे पास है, इज L di/dt इज M di/dt, फ्लक्स चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2 - B1, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, किस तरीके से हमने इसमें चलना हर प्रॉब्लम में। सो प्लीज़ आप पहले क्या देखिए, अपनी क्वेश्चन असाइनमेंट शीट लीजिए डिस्क्रिप्शन में से, उसको खुद सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर शीट डिस्क्रिप्शन में से लीजिए, चेक करिए आपके कितने सही हैं, और उसमें उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अंडरस्टैंड करिए कि कहाँ कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आपने बेटर फॉर्मूला लगाया, कहाँ आप पीछे रह गए। सो प्लीज़ do this, it will be very much helpful for you. If there is any difficulty, you can comment in comment box. Thank you.